Okay. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तुम कंटिन्यू। हाँ, तो हम एडमिट कर सकते हैं ना बच्चों को? वो हम एडमिट कर देंगे, तुम कंटिन्यू पढ़ो। ओके। So now, good morning to everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. हाँ, सबको ऑडियो वीडियो दोनों जा रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. Yesterday we have discussed about international trade and commerce, and today we will discuss about tourism Good morning, as a ma'am. trade. Good morning. Good morning. Today we will discuss tourism as a trade. So before starting new topic, first of all revise the old one. हम लोग पुराना टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था वो? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, और सभी बच्चे ना अपना ये भी करेंगे, वीडियो भी ऑन रखेंगे। ओके, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। So first of all, tell me what are the two components of international trade and commerce? Import and export and हाँ, हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है ना? वीडियो ऑन रखो। ऋषि दुबे, अपना वीडियो ऑन करो बेटा और बताओ व्हाट इज एक्सपोर्ट। ऋषि दुबे, ऋषि दुबे हो यहाँ पर? हाँ, अब बोलिए बेटा व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? हाँ, वॉल्यूम दो, वॉल्यूम। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है बेटा, अपने आप को अनम्यूट करोगे तभी तो। बोल रहे हैं मैम, एक्सपोर्ट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन कंट्रीज टू अनदर कंट्रीज और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। वेरी गुड बेटा। ओके, Thank you. थैंक यू। नाउ आर्यन सिंह ऑफ 10F, ओपन योर वीडियो। Yes, ma'am. Aryan Singh, yes, define international trade beta. Ma'am, the trade which is carried out between the international countries and institutions is referred to as international trade. Yes, carrying between different countries of the world. Very good. Now, Sakshi Singh, open your video. Open your video, Sakshi Singh. Tell me what is import. साक्षी सिंह, आवाज जा रही है बेटा? साक्षी सिंह बताओगे कि इंपोर्ट किसको कहते हैं? टेल मी व्हाट इज इंपोर्ट। साक्षी सिंह क्लास ज्वाइन करके भी क्लास में नहीं है। नाउ ऋषिका मराठे, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज इंपोर्ट। ऋषिका मराठे, वीडियो को ऑन करो और बताओ इंपोर्ट किसको कहते हैं? ऋषिका भी नहीं कुछ जवाब दे रही है। प्रिया, प्रिया कुमारी ऑफ 10E, बताओ बेटा व्हाट इज इंपोर्ट। हाँ, वीडियो ऑन करो बेटा। Ma'am, when we purchase goods from other countries and bring it to our country, it is called as import. हाँ, प्रिया, हाँ, वेरी गुड बेटा। एंड नाउ ऋषिका, आर यू हियरिंग माय वॉइस? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? ऋषिका बताएगी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वीडियो ऑन करेगी। आर्यन राज टेनी का बताओ व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अपने को अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो आर्यन।
of trade is the difference between the total value of exports and the total value of imports. ओके, वेरी गुड आर्यन। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स था इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स में, दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, international trade. And you all know that the difference between total value of export and import is called balance of trade. And if the value of export exceed over value of import, then it is favorable balance of trade. And if the value of import exceeds over the value of export, it is unfavorable balance of trade. Now it is the time to start tourism as a trade. As we have already discussed that exchange of commodities and goods have been superseded by exchange of information and knowledge, and this is the new entry in international trade and commerce. Nowadays, India has emerged as a software giant at international level, and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसलिए बता रहे हैं कि विद द एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर एबल टू रीच इन द प्लेसेस व्हिच आर अर्लियर inaccessible to us. With the help of information technology, with the help of communication technology, we are able to become accessible in remote areas also. And as we develop the remote area, as we are able to reach in the remote area, the cultural aspects of that area, cultural background, economic background of that area can also be evolved, which helps in promoting tourism. Okay? So tourism is also become a part of international trade and commerce, because all that features, all that system which become a part of international trade, that is generating employment opportunity, earning foreign exchange, all are also helpful through tourism. Through tourism also, we can earn lot of foreign exchange, we can generate employment opportunity, etc. So now some points which is very important in tourism that I have written on blackboard. Now see it. ध्यान से देखोगे क्या क्या है, और blackboard बिल्कुल एक तो उसी तरीके से कर देंगे। Ma'am, video is blurry. blurry आ रहा है, थोड़ा सा और सामने करें क्या? अभी दिखेगा? Yes. दिख रहा है ना? Some points which is highlighted to this. That is, number one is about about 5.78 million. मैम नहीं दिख रहा है मैम, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है बोर्ड। About 5.78 foreign tourists visited in India. This data is provided on the basis of 2000. Second point is it generates. What happened? क्या हो गया? नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? साफ तो दिख रहा है जी। मैम धुंधला धुंधला दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तुम मुंह बंद करो, हम साथ में डिक्टेट भी करा रहे हैं, ठीक है? सभी को दिख रहा है, संभवी तुम्हारा ही प्रॉब्लम आ रहा है। तुम हम साथ में डिक्टेट भी कराएंगे, ओके? इट generates lot of employment, lot of
employment to Indians. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जिसमें आप लिख सकते हैं about 15 million. million people को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो थ्रू टूरिज्म. It helps in earning rupees 64,889 crore. It has been 64,889 crore foreign exchange. You already know that foreign exchange is very important. It acts as an important part for any country's development as it directly helps in economic development of nation. हम विदेशी मुद्रा को directly country के economic development के लिए use कर लेते हैं. So इस तरीके से tourism is very important aspects of our country. Tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. पिछले 30 वर्षों में खास करके टूरिज्म का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. फॉरेन टूरिस्ट अराइवल भी जो है वो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. ठीक है ना, जो विदेशी यात्री आते हैं हमारे यहाँ टूर करने के लिए, हमारे यहाँ घूमने के लिए, कई सारे पर्पसेस में ये टूरिज्म किया जाता है, डेवलप किया जाता है. जो टूरिस्ट हैं वो कई सारे पर्पसेस के लिए हमारे यहाँ आते हैं. तो वो जो है वो भी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जब हम उसका डाटा देखते हैं तो देखते हैं कि काफी कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें भी दिख रहा है. बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हर साल इनकी संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है. बता रहा है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 11.8% ड्यूरिंग द ईयर 2010 एज अगेंस्ट द ईयर 2009. मतलब कि 2009 में जितने टूरिस्ट की संख्या थी उससे करीब करीब 12% का इंक्रीजमेंट देखा गया तब 2010 में. और ये जो इतने टूरिस्ट इंक्रीज किए वो अकेले जो है एक साल में जो है 64,889 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज का इन्हांसमेंट किए. ये जो 64,000 ये आपका ये जो है 64,889 करोड़ रुपए जो ये आपको बता रहे हैं डाटा, ये जो है एक साल में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो बता रहा है कि एक साल में हम 2009 और 2010 में ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है. इतना पैसा 2010 में यही इतना पैसे का इंक्रीजमेंट मिल जा रहा है. ठीक है ना, तो आपको लिखना है इंपॉर्टेंस में डाटा. आप बताएंगे कि एक साल में इतना इंक्रीमेंट होता है जबकि हर साल बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं. ठीक है, about 5.78 million foreign tourists. You already know about million. 1 million containing 10 lakh and 5.78 million foreign tourists visited India. सिर्फ 2010 में जो है वो 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे. अब आ गया है 2021. जो डे बाय डे आप लेटेस्ट जो डाटा देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये 5.78 मिलियन हो सकता है अभी 8 या 10 मिलियन में कन्वर्ट हो गया हो. ठीक है ना, उतने फॉरेन टूरिस्ट हमेशा मतलब हर साल उस 10% एनहांसमेंट हो रहा है तो हर साल टूरिस्ट का संख्या बढ़ता जा रहा है और उसी रेशियो में हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ रहा है. अब जितना ज्यादा हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं दैट मीन्स दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, बिसाइड्स दिस इट जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी to the people. About 15 million people
डायरेक्टली इंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। अब जैसे कि आप 2-4 साल पहले चले जाओ, मतलब 2-3 साल, हमको लगता है 2018-19 में, 2018 और 19 में आपका लद्दाख में कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ये आप जानते हैं कि लेह और लद्दाख इंडिया का एक ऐसा स्पॉट है जो बहुत समय तक आइसोलेटेड रहा है। वहां पे जब आप क्लास 8 में जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे, तो उस समय बताता था अर्लियर 5 साल 6 साल पहले की बात, वहां पे बताता था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 0.5% पर स्क्वायर किलोमीटर है। 0.5% मतलब क्या है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति से भी कम, यानी कि वहां 2-3-4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक आध फैमिली दिखती थी। वो कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने के बाद वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया है, ठीक है ना। वहां का जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पहले से काफी बढ़ गया है। तो क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है टूरिज्म का वहां, कि वहां का जो कल्चर को इवॉल्व किया गया, वहां की जो नेचुरल ब्यूटी को लोगों के सामने लाया गया, वहां का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, जब वो लोगों के सामने आया, जब वो दुनिया के सामने आया, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए वहां विजिट करने के लिए। आजकल इंडियंस भी देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि घूमने जाने की बात होती है तो लेह लद्दाख चलते हैं, लेह चलते हैं, लद्दाख चलते हैं, दोनों अलग अलग स्पॉट है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग वहाँ के कल्चर की भी जानकारी चाहते हैं, वहाँ के नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद लेना चाहते हैं, और वो दुनिया के कांटेक्ट में आया। और यही कारण है कि लेह लद्दाख रोड भी बना, आपका रेलवे लाइन भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और एयरवेज तो उसको इवॉल्व किया ही, उसको एक्सेसिबल बनाया ही। तो धीरे धीरे वहाँ टूरिज्म के कारण वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे उधर डाइवर्ट कर रही है। And this helps in decentralization of population. Centralization of population means concentration of population in particular belt, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से साधन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेह लद्दाख में सीमित साधन था, लेकिन जैसे ही टूरिज्म को वहाँ प्रमोट किया गया, धीरे धीरे पॉपुलेशन वहाँ भी बढ़ रहा है। Means that also helps in tourism, also helps in decentralization of population even in remote areas, because that provide opportunity of employment, that provide opportunity for development, that provide many basic facilities for the people. With all these development, basic facilities are provided to the people, so now people get attracted towards that region. जहां हमारे पास कुछ नहीं होता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, वहां जाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जिस बारे में जान रहे हैं वहां हम लोग जाते भी हैं, और उस वहाँ के जो भी है वहाँ के रिसोर्स का यूज भी करते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट में अपना योगदान, यानी कि हम घूमने के लिए गए तो जो भी पैसा खर्च किए वो वहाँ के लोगों के लिए के डेवलपमेंट में योगदान देता है। तो इन दिस वे टूरिज्म ऑल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ inaccessible and remote area, and that is possible due to increasement in information technology, that is possible due to development in satellite technology. Besides this, tourism also promotes national integration. It helps in unifying the whole nation. And besides this, by sharing our culture, it also promotes a feeling of brotherhood between different countries of the world. सिर्फ ये आपको national integration को ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि विथ शेयरिंग ऑफ कल्चर, आवर कल्चर्स आर शेयर्ड विद द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज. मेनी फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया एंड दैट शेयर आवर कल्चर, दैट प्रमोट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. और आप जानते हैं जैसे ही फ्रेंडली रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉर जो होगा वो कम हो जाएगा. जब हम फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉर कम होगा. So it promote national integration, it promote friendly relationship between different countries by inviting foreign tourists to our country, and it also provides support to local handicrafts and cultural pursuits. अब जो वहाँ के indigenous people हैं, जो वहाँ के originally वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अब उनको इधर उधर जाकर अपना livelihood earn करने का जरूरत नहीं होता है.
उनको आपको घुमक्कड़ जीवन बिताने का अब जरूरत नहीं है। जब लोग वहां जाने लग रहे हैं तो वो वहीं पे अपना उद्योग शुरू करते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो भी है उनका, वो आपका बिकने लगेगा और धीरे धीरे वो अर्न करने लगेंगे और उनके जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इनहांस करता है। सो इट ऑल्सो प्रमोट local handicrafts, provide employment to local people and cultural pursuits of that area. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, आप जानते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं? एक इंटरनेशनल प्लेस में, गया में ही आता है आपका बोध गया, आता है ना? बोध गया का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई बताएगा? Anyone? Ma'am, regional importance है. Ma'am, land of enlightenment and salvation. हाँ, salvation, ये मुक्ति का है, ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का बोध होता है हमारे बोध गया में, है ना? और कई सारे कंट्रीज जो हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज, वो बुद्धिज्म को फॉलो भी करते हैं। अगर सपोर्ट करो, हाँ, मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जो है वो ये बोध गया जो है, दैट इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। हाँ, फॉरेनर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ के गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जो जीवनी है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनको जो ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये जो है वो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्री को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो बुद्धिज्म रिलीजन को में बिलीव रखते हैं। हर साल यहाँ पे आते हैं, काल चक्र पूजा होता है, आप लोग देखे हैं ना? काल चक्र पूजा हर विंटर में होता है, करीब मतलब 2-4 साल 5 साल के बाद। अभी तो चूंकि कोरोना पेंडेमिक है इसलिए नहीं इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये इसमें लोग आते हैं और अपना उस तरह का यज्ञ हवन और पूजा पाठ करते हैं, और विदेशी आते हैं। उनके आने की वजह से ही हमारे गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। देख लो, due to presence of Bodh Gaya, many foreign tourists visited India. Due to presence of international heritage in the form of Bodh Gaya, Gaya city is also going to be developed day by day. यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है ताकि फॉरेनर आए, विजिट करें, हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं। और गया एक चीज के लिए और फेमस है, आपको पता है कौन सा पूजा के लिए फेमस है? और एक तो बोध गया इंटरनेशनल हेरिटेज हो गया, और बताओ कोई और किस लिए फेमस है? आर्यन राज, टेनी। पितृपक्ष मेला। यस, पितृपक्ष मेला के लिए, और इसमें भी देश विदेश से लोग आते हैं ना? और आप जानते हैं कि ये हमारे यहाँ, हमारे गया शहर में, गया लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जो कि पंडा का सोसाइटी कहलाता है, ठीक है ना? ऋषिका भी शायद क्लास कर रही होगी यहाँ पे। और वो सोसाइटी जो है अपने साल भर का जो एक तरह से उनका अर्निंग होता है वो इसी 15 दिन पितृपक्ष मेले में होता है, क्योंकि ये ऐसा माना गया है कि वो लोग जब उसका पूजा कराते हैं तब मुक्ति मिलती है, ठीक है? तो इसलिए भी गया फेमस है अपने पितृपक्ष मेले के लिए, इंटरनेशनल प्लेस बोध गया के लिए, और कई सारा प्लेस। अभी आजकल सीता कुंड को डेवलप किया गया है। तुम गया शहर में ही देख लो कि कितने सारे वैसे प्लेस है। पितृपक्ष मेला के समय सीता कुंड का विशेष महत्व बढ़ जाता है, वहां पे लोग पिंड दान करते हैं, वहां पे भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर आते हैं, विजिट करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पूजा पाठ में लगाते हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो जितना ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, एरिया का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा है। हमारे गया का कल्चर, हमारे गया का जो फेस्टिवल्स, हमारा बोध गया का जो काल चक्र पूजा है, ये वर्ल्ड फेमस है, एंड दिस इज ड्यू टू टूरिज्म। और ये हमारे यहाँ के लोगों को भी लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उनके अर्निंग का भी मेन सोर्स है, उनके लाइवलीहुड को भी चलाने में कंट्रीब्यूट करता है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yes, okay. So in this way, we can see that how tourism helpful in local development, in development of local handicrafts, in development of economy of that area, in development of business of that area, in generating employment opportunity to the people, and
In this way, it directly contribute to our economic development. इंडिया में कई तरह का टूरिज्म जो है वो फेमस है. जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं सिर्फ आपका रिलीजियस पर्पसेस पे ही नहीं आते हैं, सिर्फ आपका पितृपक्ष के इम्पोर्टेंस के कारण ही नहीं आते हैं, बल्कि और भी बहुत सारा एस्पेक्ट्स है टूरिज्म का which attract tourists within our country and in different countries of the world. जैसे कि foreign tourists visit India for heritage tourism, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका बोध गया आ सकता है, वो वर्ल्ड का एक कल्चरल हेरिटेज का सेंटर है, वर्ल्ड का सेंटर में से आपका बोध गया है. इको टूरिज्म मीन्स व्हाट? टूरिज्म which is helpful in tourism which is promoted by environment, ecological aspects पर. कई सारा जो हमारा हिल स्टेशन है वो ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री नेचर है, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो वहां पे विजिट करने के लिए भी लोग आते हैं. इको टूरिज्म सुनते हो ना कि कभी कभी डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि भाई इनको हिल स्टेशन पर कुछ दिन ले जाइए, इनको थोड़ा सा शांति मिलेगा हेल्थ पर्पज से. ठीक है, तो इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म. अब अभी किसी को अभी विद इन आवर कंट्री अगर हम लोग एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ का जब इस टाइम में खास करके जब लोग जाते हैं, सोचो कि कैसा इन्वायरमेंट है. कभी कभी लैंडस्लाइड होने का भी खतरा होता है, कभी कभी बर्फ पिघल जाकर नीचे दबने का भी खतरा होता है ना. तो ऐसे मतलब खतरा मोल लेते हुए भी लोग आते हैं और विजिट करते हैं और उसका आनंद लेते हैं. तो एडवेंचर टूरिज्म भी है, कल्चरल टूरिज्म भी है, मेडिकल पर्पसेस पर भी लोग आते हैं. ठीक है, और बिजनेस टूरिज्म भी है. इसके अलावा एजुकेशनल टूरिज्म भी होता है. कई लोग हमारे यहाँ से दूसरे कंट्री में पढ़ने जाते हैं, वहां से हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, आते हैं. तो टूरिज्म का कई सारा एस्पेक्ट है जिसमें हेरिटेज, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म मेन है. ठीक है, इन इंडिया देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अभी जैसे कि आप गया सिटी में रहते हैं, हम बताए कि सीता कुंड को रिसेंटली डेवलप किया गया है एज ए टूरिस्ट प्लेस, और देखोगे कि हर समय पिकनिक स्पॉट तरह वहाँ के जैसा उस एरिया को ब्यूटीफाई किया गया है. आसपास के लोग वहां आते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं. तो इस तरह से हमारा वो एरिया जो एकदम से इंटीरियर था, ठीक है ना, अब वो लोगों के सामने आ रहा है और वहां पे आसपास रहने वाले लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वहां के लोगों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है. तो ठीक है, तो विद इन गया सिटी ही हम लोग का कितना सारा है. अब रामशीला पे चले जाओ तो देखोगे कि स्काउट गाइड के लोग ज्यादातर वहां पे अपना ट्रेनिंग कैंप को शेड्यूल करते हैं, ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं रामशीला के पहाड़ पर. उसका डिफरेंट एरिया में कई सारा गुफा है, केव्स है वहां पर, और वहां से वो ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरीके से हम ये करेंगे. तो बहुत सारे स्पॉट है जो कि टूरिज्म के कारण हमारे टच में आता है और इस तरीके से हम उस एरिया को डेवलप करते हैं. सो वी आर हैविंग वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ कंट्री. गया में ही देखें तो कितने सारे प्लेसेस हो गए धीरे धीरे जिसको डेवलप किया जा रहा है. Efforts are also being made to promote different types of tourism for this upcoming industries. आजकल with development of remote area, we are trying, our government is trying to promote tourism and different types of tourism in different area. जहाँ पे जिस तरह का aspects है उस तरह का tourism को develop करने की का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में इसका और भी ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिल सके. नाउ इट इज योर टाइम. नाउ इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन इन टूरिज्म देन आस्क. 2-minute time is given for asking one by one. Ask your questions by opening your videos. जिसको अगर कुछ पूछना है. हाँ मैम, हम एक बार काल चक्र पूजा में गए थे बोध गया, तो मैम हम लोग इंटर नहीं करने दिया गया था. तो मैम पहले कौन बोल रहा है? अपना वीडियो ऑन करो. कौन बोल रहा है? वीडियो ऑन करो. हाँ, मैम अदिति वर्मा. हाँ बोलो. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा.
मैम गए थे ना काल चक्र पूजा, तो वहाँ हम लोग को इंटर नहीं करने दिया गया था, वहाँ हिंदू लोग को। तो मैम वहाँ सिर्फ बौद्धिस्ट लोग जाता है। बौद्धिस्ट लोग में ना बेटा प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना होता है। अगर लोकल पीपल आ जाएंगे तो वो इंटरनेशनल फेम का जगह है, और वहाँ पे उन लोगों का एक विशेष पूजा होता है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो कंट्री उसके मेंबर हैं। तो उनका सिक्योरिटी भी एक पर्पस होता है, ठीक है ना, इसीलिए Yes, लोकल ma'am. लोगों के एंट्री वहाँ पे प्रोहिबिटेड। तो यस मैम। आप देख रहे हैं कि वो रिलीजियस पर्पस से बोध गया जो है एक फेमस प्लेस है ना, वर्ल्ड फेम का जगह है। यस मैम। और कुछ क्वेश्चन अदिति, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? तो मैम यहाँ गया में रह के मैम Next. गया के लोग को क्यों नहीं घुसने दिया जाता है? गया लोकल लोगों को उस समय कैसे घुसने दिया जाएगा? आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा ऐसा भी थिंग्स है जिससे कि आपको उसके बारे में, काल चक्र पूजा के बारे में जाना जा सकता है। जब उनके लामाज आते हैं, हाँ, दलाई लामा आते हैं, तो उनके सिक्योरिटी पर्पसेस एंट्री प्रोहिबिटेड होता है उस समय, ठीक है ना। वो इंटरनेशनल फेम का जगह। हाँ, नेक्स्ट, और कोई एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट? पूछोगे बेटा, अब थोड़ा कम ही टाइम बचा है। एनीवन? नाउ अब मेरा है क्वेश्चन तुम लोगों से, जिससे पूछेंगे वो अपना वीडियो ऑन रखेगा, ठीक है। प्रिंस राज अभी तक एक बार भी इंटरैक्ट नहीं किया है। प्रिंस राज, प्रिंस राज, प्रिंस राज ओपन करो अपना। हाँ, आर्यन राज बोलो बेटा। आर्यन राज क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। tourism once again. एक बार वीडियो ऑन करो, क्या बोलना चाह रहे हो? बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म आज के समय में Yes, ma'am. क्वेश्चन है ना। आजकल ये जो जैकेट पहना है कैसे मंगाया? मार्केट जैसे जाकर खरीदा है कि ऑनलाइन लेकर आया है? अभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं। आर्यन राज, टेनी में हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाए हैं। उसमें हम लोग पढ़ाए थे मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ, एक साथ अपना बिजनेस जो है, बिजनेस डीलिंग कई सारे कंट्री में ऑपरेट करती है ना। कहीं उनका कॉल सेंटर होता है, कहीं उनका जो भी बिजनेस है उसका पूरा कॉपीराइट तैयार होता है कि क्या क्या प्लानिंग पर बेस्ड होगा। कहीं उनका वर्क फोर्स होता है और प्रोडक्शन वर्क करते हैं एक साथ कई सारे कंट्री में। तो एमएनसी जो है वो उनको इस बारे में जानकारी, कहीं जब बिजनेस पर्पसेस के लिए लोग विजिट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस एनहांसमेंट को, दैट इज बिजनेस टूरिज्म। अब जैसे कि हम एक बात बताते हैं कि मान लो कि हम लोग कहीं गए हैं, मान लो कि हमारा कहीं सेमिनार है या तुम्हारा कहीं पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई सेमिनार है, पटना गए कोई सेमिनार अटेंड करने। तो सेमिनार अटेंड करने का टाइमिंग मान लो कि 8 से 12 है। 12 बजे के बाद आपका शाम में ट्रेन है। तो क्या सब कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं हम एजुकेशन पर्पस से ही आए हैं तो जरा यहाँ का तारामंडल देख लें। होता है ना, कहीं तुम लोग जाते हो दूर दराज, मान लो बेंगलोर में शादी में गए और शादी अटेंड करने के बाद कोशिश करते हो ना कि टाइम मिले कि आसपास का एरिया घूम लें, हम पहली बार आए हैं। तो बिजनेस पर्पसेस से भी जो विजिट करते हैं वो भी आसपास के एरिया को घूमते हैं और उस एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उससे रिलेटेड भी उनके बिजनेस को कोई अगर हेल्प मिल सके। और विथ बाई जो भी आप वो बिजनेस पर्पसेस में आते हैं और आसपास घूमते हैं तो वहां के टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हैं, तो वो उस तरीके से भी हमारे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एमएनसी का जो वर्क है
और उसमें जो बिजनेस डेलीगेट्स का आना और जाना है, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टूरिज्म। वो अपने मीटिंग के दौरान, उसे आजकल तो खैर कोरोना पेंडेमिक में हम लोग सिर्फ वर्चुअल टूर कर रहे हैं, है ना, सिर्फ वीडियो और फोटो में ही घूम रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ऐसे आते और जाते हैं कहीं, तो वहां के आसपास का फेमस स्पॉट को देखना जरूर चाहते हैं। जैसे हैदराबाद गए, वहां का फिल्म सिटी ना देखे तो लगेगा कि भाई हैदराबाद आकर भी नहीं देखे, तो गए हैं किसी और पर्पज से, गए हो तुम अपना इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देने, लेकिन जाकर फिर टाइम है तो फिल्म सिटी देखते हैं। तो फिल्म सिटी जाओगे तो फ्री में जाओगे कि वहां पे टिकट अवेल करोगे ना, एंट्री का, जो भी ये है। तो इस तरीके से ये टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा।